Hello learners, welcome to Practice Cafe, and today we are going to start a new MCQ series on Indian Dalit literature. In part 1 we are going to encounter the MCQs related to the introduction of Indian Dalit literature and Dr. B.R. Ambedkar. So stay connected and keep practicing through the MCQs. Today's first question is, the word Dalit comes from. हमें ये बताना है कि दलित वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज का है. ऑप्शंस हैं ए हिंदी, बी संस्कृत, सी पर्शियन और डी उर्दू. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी संस्कृत. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड दलित मीन्स. ऑप्शंस आर डाउन ट्रॉडन, सप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड, सी crushed or broken into pieces, or D, all of these. So the right answer of this question is D, all of these. Next question, by whom the term Dalit was first used in 19th century. तो हमें ये बताना है कि 19th century में दलित टर्म को फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था. ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिराव फुले और भीमराव अंबेडकर. So the right answer of this question is C, Mahatma Jyotirao Phule. Next question, which of the following term was coined by Gandhi ji for Dalits? इस क्वेश्चन का आंसर I feel that सबको आता होगा. So the options are outcast, हरिजन, अस्पर्श या children of God. So the right answer is option B, हरिजन. Question number 5. The earliest non-Dalit reformer was. Options are Swami Vivekanand, Lord Gautam Buddha, Mahavir Jain या Sant Kabir. So the right answer of this question is B, Lord Gautam Buddha. Question number 6. 19th century marked the active participation of some groups in the emancipation of Dalits. The groups were. तो हमें ये बताना है कि 19th सेंचुरी में कई ग्रुप्स थे जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था दलित्स के राइट्स के लिए. तो इनमें से कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं. तो ऑप्शंस हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन या ऑल ऑफ दीज. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, which state was the key state in India on the transformation of untouchables? Options are Rajasthan, Gujarat, Maharashtra या Kolkata. So the right answer is C, Maharashtra. Question number 8. Who initiated the Namo Shudras movement in West Bengal? आपको बताना है कि वेस्ट बंगाल में नमो शुद्राज मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी. ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, चैतन्य प्रभु, अमृत्य सेन या राजा राम मोहन रॉय. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, चैतन्य प्रभु. क्वेश्चन नंबर 9. In 1950s, who turned his attention to Buddhism and thousands of untouchables moved to Buddhism under Dalit Buddhism movement? So options are Raja Ram Mohan Roy, Dr. B.R. Ambedkar, V.R. Shinde या ईश्वर चंद्र विद्यासागर. So the right answer of this question is Dr. B.R. Ambedkar. Question number 10. दलित मूवमेंट. हमें ये बताना है कि दलित मूवमेंट के बारे में इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है. ऑप्शंस हैं aimed to seek equality with all other castes of Hindu society. B, aimed to bring socio-political transformation in the status of Dalits in India. C, aimed at replacing the age-old hierarchical Indian culture with democratic values of liberty. या D, all of these. So, right answer is all of these. ये सभी जो sentences आपको दिखाई दे रहे हैं, these are related to the motto of Dalit movement. Next question. In which year Baba Saheb Ambedkar completed his work The Buddha and His Dhamma that published posthumously? तो हमें ये बताना है कि द बुद्धा एंड हिज धम्मा बाबा साहब अम्बेडकर ने कब कंप्लीट किया था, जिसे पॉस्थ्यूमसली पब्लिश किया गया था. ऑप्शंस हैं 1954, 1945,
1956 or 1965? So the right answer of this question is 1956. Next question. Which of the following works is not attributed to Dr. B.R. Ambedkar? हमें ये बताना है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इनमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा है. ऑप्शंस हैं द एनहिलेशन ऑफ कास्ट इन 1936, Who were the Shudras 1946, The Untouchables, Who were they and why they became untouchables, or D, all of these. So we know that all of these works are written by Dr. B.R. Ambedkar. So the right answer of this question is D, all of these. Next question. Who were the Shudras that was written in 1946 by Ambedkar was dedicated to? हमें ये बताना है कि Who were the Shudras जो वर्क डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा था उसे किसे डेडिकेट किया गया था. So the options are महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले, गौतम बुद्धा और राजा राम मोहन राय. So the right answer of this question is Jyotirao Phule. Next question. Who were the Shudras that was written in 1946 by Ambedkar is divided into? So इस बार हमें ये बताना है कि इस वर्क को कितने पार्ट्स में और कितने बुक्स में डिवाइड किया गया है. तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने. A 2 parts and 12 books, 3 parts and 10 books, 4 parts and 6 books या 5 parts 5 books. So the right answer is A 2 parts and 12 books. So काफ़ी सारे फैक्ट्स हमें इस बुक के बारे में पता चले हैं. That who were the Shudras? It was written in 1946. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखी है. महात्मा ज्योतिराव फूले को डेडिकेट की गई है और ये बुक जो है that is divided into 2 parts and 12 books. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फाइनल वर्क बाय B.R. अम्बेडकर इज. हमें ये बताना है कि फाइनल वर्क जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वो कौन सा है. ऑप्शंस हैं A द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स, और द बुद्धा एंड हिज धम्मा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D, the Buddha and his Dhamma, that was written in 1956 and was published posthumously in 1957. So next question. Dr. B.R. Ambedkar is also known as. तो हमें ये बताना है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को और किन नामों से जाना जाता है. ऑप्शंस हैं मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, लिंकन ऑफ इंडिया, मॉडर्न मनु या ऑल ऑफ दीज. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. Next question. For the defense of Dalit rights, Dr. B.R. Ambedkar started periodicals. The number of periodicals were. तो दलित राइट्स के डिफेंस के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने काफ़ी सारे पीरियोडिकल स्टार्ट किए थे. तो हमें ये बताना है कि उन्होंने कितने पीरियोडिकल स्टार्ट किए थे. ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 और 7. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, 5. 5 पीरियोडिकल्स उन्होंने स्टार्ट किए थे. क्वेश्चन नंबर 18. Which of these is not included in the periodicals Dr. Ambedkar started for the defense of Dalit right? तो अभी हमने देखा कि 5 periodicals यानी 5 periodicals उन्होंने स्टार्ट किए थे for the defense of Dalit rights. अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो नाम है वो इन periodicals में इंक्लूड नहीं है. ऑप्शंस हैं मूक नायक, B बहिष्कृत भारत, C समता या D बहिष्कृत समाज. सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी बहिष्कृत समाज. अब बहिष्कृत भारत और बहिष्कृत समाज ये दोनों एक जैसे नाम लग रहे हैं पर बहिष्कृत भारत जो है वो उन 5 पीरियोडिकल्स में इंक्लूडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज नॉट ट्रू अबाउट द पीरियोडिकल्स स्टार्टेड बाय अम्बेडकर. तो हमें ये बताना है कि इन पीरियोडिकल्स के बारे में कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है. सो ऑप्शंस हैं समता दैट वाज स्टार्टेड इन 1928, जनता 1930, प्रबुद्ध भारत 1936 and बहिष्कृत भारत 1957. So the right answer of this question is D बहिष्कृत भारत 1957. यानी ये जो है वो सही नहीं है. बहिष्कृत भारत जो है that was started in April 1927. तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हमें ये पता चल चुका है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 5 पीरियोडिकल स्टार्ट किए थे उनके क्या क्या नाम थे. देखिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, एंड उसके बाद
जनता और प्रबुद्ध भारत. So these are the 5 periodicals. Next question. The Bharat Ratna Award was posthumously conferred upon डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन. हमें ये बताना है कि भारत रत्न अवार्ड जो उनको पॉस्ट्यूमसली कन्फर किया गया था वो कब किया गया था. ऑप्शंस हैं 1990, 1992, 1989 या 1999. So the right answer of this question is 1990. So there is a question for you. Who is considered the father of Dalit movements in India? इतने सारे क्वेश्चन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे और दलित मूवमेंट पे पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे. सो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में. ऑप्शंस हैं ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड डी राजा राम मोहन राय. सो thank you very much for watching this video. Stay connected and keep practicing through the MCQs. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में.